लावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन चरणों विच जुड़ मिल बैठे सत्संगी प्यारियो, करो कृपा अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दस तो पहला साडे कौमी सरमाए विचों ते मेरे बच्चों वर्गे ने ज्ञानी जबरतोड़ सिंह जी और कोसों उन्होंने पासों अमृतमई बाणी का कीर्तन सरवण करके प्यासियां रूहां की प्यास बुझाई है। सतगुरु दाता मेहर करे, गावे सुने बचन साडी सिमरती विच वस जाण, असीं अपना जीवन पंथ सुहेला कर सकीए। विचार की शुरुआत करनी चाहना, नाले भी बेनती करनी चाहना, कोई दो रामा नहीं। जे 7 दिनों का समागम चल रहा है तो तुसी 7 दिनों तो सरवण भी करते आ रहे हो। अज फिर नाल एक ये भी कोशिश करियो, जेड़ियां गल्लां मैं सुनिया ने कि वो मेरे कन तक ही ने या कन तो लेके मन तक पहुंच गई ने। कन तो प्यारे एक बर्तन है, जिहड़ी वरतों विच आउणी वो मन तो आउणी है। अरदास करिए सतगुरु जिहड़ियां विचारां मैं सुनदा है वो कन तो लेके मेरे मन तक पहुंच जाण। आपां गल शुरू करिए। मनुख जदों भी मानव बस्ती विच कदम रखदा है तो उदों ही इनू तृष्णा का बड़ा रोग लगता है। तृष्णा के बड़े रोग नाल इनू मौत भुल जाती है। ये तृष्णा बड़ा रोग लगा, मरण मनो विसारी। मौत नू भुल के फिर जीवन गुजारदा है। हर उस गल तो डरदा है जिहदे नाल मौत दा संबंध होवे। हर वो उपराला करदा है जिहदे नाल मैं मौत तो अपने आप नू दूर ले जाऊं। संसार एक बड़ी बड़ी लड़ाई लड़दा है, वो लड़ाई सिर्फ मौत तो बचण दी है। कोई डॉक्टर है, कोई दवाइयां दी खोज है, कोई लैबोरेटरियां दे तजर्बे ने, किसी साइंसदान दीयां किताबां ने, सारियां इको गल ते लगियां ने। असीं घर बनाउने हैं, गड्डियां लेने हैं, कुछ भी लेने, हर चीज दे मगर एक भावना हुंदी है कि मेरी जिंदगी इहदे च बचाए जां मौत नाल वास्ता पाउण वाली है। सारा संसार लड़ रहा है इस गल दी भी मैनू मौत ना आवे। पर जदों मनुख धर्म की दुनिया च पैर रखता है, खास करके सिक्खी दे बेड़े च,
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸਬਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ, ਅਸਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼। ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਕਰਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚਾਉ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ੌਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਤ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਚਾਅ ਬਣ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਪਿਆਰਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ 3 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਰਸਾ ਆਪਾਂ ਫੋਲੀਏ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ 22 ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਹੁਣ 4 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਚਪਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
बाल होना एक वक्री गल है, बालपन होना एक वक्री गल है, दो वक्को वक्रियां गल्लां ने। बच्चों की उम्र तो बालपन बन गई है, बालपन वर्गी है। 7 साल से 9 साल का बच्चे बालपन बचपन भी ही ने है, तो बचपन विच ने, पर वो बच्चे नहीं, असीं उन्हां नूं बाबे कहने है, वो बच्चे नहीं। उम्र बचपन दी है, पर उन्हां दी करनी बचपन वाली नहीं है, उन्हां दी करनी बच्चों वाली नहीं है। वास्ता जे साडे विरसे नूं किते बालपन विच ना गवा दिओ। ये तां शहीद ने जिन्हां दे सिर ते कौम खलोती हुई है। आओ वापस चलिए। आनंदपुर साहिब की धरती ते आनंद पढ़दियां, आनंद की बुक्कड़ विच साहिबजादियां ने अपने जीवन का बचपन गुजारिया। आखिर सच दे पंधियां ने, सच दे मार्ग ते तुरदियां कुछ कूट दे बनजारियां ने कई जंग लड़े ते जित ना प्राप्त हुई। मन में भावना हुंदी किसी तरह पहला मैं इन्हां नूं कमजोर कर दिया, फिर दोबारे लड़ांगा। कमजोर करने वास्ते इको एक उन्हां कोल भावना हुंदी है कि इन्हां दीयां लोड़ां नूं बंद कर दईए। आनंदपुर साहिब की धरती नूं घेरा पा लिया। घेरा पा के बाहरला प्रशादा पानी, भोजन पानी बंद कर दिता। याद रखो, जो सिख दो तरह का जीवन जीउंदा है, एक शरीरक, एक अध्यात्मक। दोनों दी आपो अपनियां खुराकां ने, दोवें जरूरी ने। साडे गुरु ने सानू दोवें दित्तियां ने। फिर भी किसी हद तक अध्यात्मक खुराक कोल होवे, शरीरक खुराक बिना जीविया जा सकता है। मैं अगे जाके भी तुहाडे नाल गल साझी करांगा। उन्होंने बाहरी तौर पर तो बंद कर दिता भी आनंदपुर साहिब दे विच राशन का, अनाज का एक किणका ना जावे, पर जिहड़ा अंदर पिया सी थाल विच 3 वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचे, तिसका कोई उधारो, इहे वस्त तजी न जाई, नित नित रख उरतारो। गुरु कहंदा आ वस्तु मैं तज नहीं सकदा, भोजन पानी ते कदे ना भी मिले तद भी कोई गल नहीं। जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख देता इट ही राजा, दुख विच सुख मनाई। मैनू दुनियावी प्रशादा पानी ना भी मिले मैं बर्दाश्त कर लांगा, पर आ वस्त मैं तजी नहीं जान छड़ सकदा। मैनू गुरबाणी नाल जोड़ के रखी। अंदर बैठे सच दे बनजारे गुरबाणी नू आहार बना के जीव रहे ने। नहीं कोई कमजोरी उन्होंने सामने आई। बाहर लिया ने घेरा जिन्होंने पाया सी, उन्होंने आपे ही घेरा चुकन का मन बना लिया। अंदर वाले नहीं किया भी घेरा चुक लो, उन्होंने आपे ही घेरा चुकन का मन बना लिया। आटे की गां बना के, मैं सीधे शब्दों में कहां, एक ओ जेड़े गां खाण वाले ने, एक ओ ने जेड़े गां की कसम खाण वाले ने, दोवें इकट्ठे हो गए। एक गां की कसम खाण वाले ने, एक गां ही खाण वाले ने। सीधे दोनों फैसला करके थाली विच रख के आटे की गां ते कुरान मजीद दी कसमां खाधियां। तुसीं आनंदपुर साहिब नूं छड्ड जाओ, असीं इत्थों दे वासी नहीं, असीं तां बाहरों आई फौज है, असीं चले जाना, तुसीं वापस आके कब्जा कर लेना। कलगियां वाले सतगुरु नूं पूर्ण तौर पर सब कुछ दा पता है भी ये दगेबाज लोग ने, पर धर्म दीयां निशानियां दा सहारा ले रहे ने। सब तो आखिरी कदम ही धर्म दीयां निशानियां दा हुंदा है। अदालतां विच भी देखो, जदों कोई बंदा ना बोले तो उहनूं गुटके ते हथ रखवाया जाता भी मैं सच बोलांगा। किते तां यकीन करना ही पेगा ना।
धर्म दीयां निशानियां ते यकीन करके हजूर ने फैसला कर लिया आनंदपुर साहिब नूं छड्ड जाना। इत्थे भी मैं एक बेनती करन लगा, 3 अखर ने सिर्फ छड्ड जाना, 4 अखरां दा मेल है, कोई बहुती वड्डी गल नहीं। पर कदे इस एहसास नूं जीव के वेखियो, जेड़ी थां ते एक निशानी भी होवे बंदा उन्नी क निशानी भी त्यागण नूं राजी नहीं हुंदा। इत्थे तां गुरु कलगीधर पातशाह तेरा बचपन बीतिया इसे थां दे उत्ते, कदे कश्मीरी पंडितां नाल तू अपने बापू नूं तोरिया, इसे थां दे उत्ते कदे तू खालसे दी साधना कीती है, इसे थां तो तू 5 प्यारे शब्द दिते ने, इसे थां तो तू 5 ककार दिते ने, इसे थां तो गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनिया सी, इसे थां तो दया राम तो दया सिंह बनिया सी, इसे थां तो आपे गुरचेला बनिया सी, इसे थां तो खंडा बाटा घोल के पिलाया सी, गुरबाणी घोल के पिलाई सी, इसे थां तो सानू फतेह मिली सी। इत्थे किन्नियां यादां ने साडियां। तेरे 3 पुत्तां दा जन्म है आनंदपुर साहिब दी धरती तो। जिंदगी विच सिर्फ 1.5 संस्कार करन दा मौका मिलिया गुरु गोबिंद सिंह जी नूं, ते 1.5 भी केवल आनंदपुर साहिब दी धरती ते है। एक अपने महल माता जीतां दा, एक अद्धा संस्कार करन दा मौका मिलिया गुरु तेग बहादुर साहिब दे सीस दा, वो भी आनंदपुर साहिब च। इन्नियां यादां पाके आनंद दी पुरी नूं एक रात विच ही छड्ड देना, ये संसारी बापू नहीं हो सकता। ये वही हो सकता है जिन्हों भाई नंद लाल सिंह की कलम लिख रही है, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। अद्धी रात नूं छड्ड के तुर चले ने। सच्चे पातशाह ने कुछ हथियार वंडे, जिन्नी को माया सी उहदे हिसाब नाल सारियां तो माया वंडी। वडेरी उम्र है 80 साल की, मां गुजर कौर दी 80 साल की उम्र है। जद उहदी झोली विच लिया के उहदे पाले हुए 2 पोतरे पा दिते। इन्हों पालिया भी मां गुजर कौर नहीं सी। सिर्फ 3 साल के सन बाबा जोरावर सिंह जदों माता जीता चढ़ाई कर गए। 1 साल का सी बाबा फतेह सिंह जदों मां जीता चढ़ाई कर गए सन, ते इनू पालिया भी मां गुजर कौर नहीं सी। अपने दोवें पोतरियां नूं लेके दादी गोद विच बैठी गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बचन आख्या, कहन लगे मां इन्हां संभाल नहीं। मां ने बचन आखे, कहन लगी पुत वे मैं वादा करनी तेरे पुत तां भावें ना मोड़ सका, पर इन्हां दा सिदक जरूर वापस रख दियां। इस सिदकों नहीं डोलण दियांगी। रात को आनंदपुर साहिब तो निकले, कीरतपुर साहिब ते उस तो अगे सरसा का किनारा है। इतिहास से बहुत बारी रिपीट होया, मैं विचलियां गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां। सरसा का किनारा याद रखियो जी, अज ते बहुत छोटी जही है ना, उदों करीब किलोमीटर विच नूं खिलरी हुई सी। बहुत वड्डी सी सरसा दी नदी। इहदी सब तो वड्डी मुश्किल यह सी भई इहदे च पानी एक थां ते नहीं सी वगदा। इत्थे पानी वगदा डूंगा, अगे फिर सुक्का आ गया, बरेती आ गई, अगे फिर पानी वगदा, अगे फिर सुक्का आ गया। फिर यही कारण सी भई सरसा दी नदी दे उत्ते ना कोई बेड़ी चलदी सी, ना कोई बेड़ा चलता सी, क्योंकि नदी आम नहीं सी वगदी। ये तां कदे कदाई आउंदी सी जदों किते पहाड़ां च मींह पै जांदा सी।
हुणे कई दिनों तो बरखा हो रही सी, ये भी चंदरी नदी सारी चढ़ी हुई है, कित्थे डूंगा है कित्थे हल्का है ये पता नहीं लगना। ये बहुत खेतर चौड़ा सी उदों। हुण सामने तो नदी चढ़ी हुई है, पिछे तो कसम खान वाले हाकम चढ़ के आ गए ते गुरु दा परिवार है, उत्तों मीह पै रहा है, पौह दा महीना है, कहरां दी ठंड है, कदे कदाई बिजली लिशकदी है ते उहदे चों थोड़ी बहुती पहचान आउंदी है, बाकी नहीं पता लगदा। बेनती करां गुरु कलगीधर पातशाह दा जिगरा किहो जिहा होवेगा। अपने पुत नूं आवाज मारी, मैं बहुत बारी बेनती करना, दुनिया भर चो कोई मां देखे हो, दुनिया भर चो कोई मां बाप देखे हो, और जदों भी कदे वक्त आउंदा है, माफ करियो, कोई जदों भी कदे वक्त आउंदा अपने बच्चे दी खतरा होवे, मां झट चुके जां बाप झट चुके खतरे चो अपने बच्चे नूं गोद विच बिठा लैंदा है। पर गुरु गोबिंद सिंह वो है जेड़े गोद विच बैठे नूं चुक के खतरे च भेज रहे हैं। उन्हें आवाज मारी, अजीत सिंघा, भाई जीवन सिंघा, जाओ कुछ सिंघां नूं नाल लेके जाओ, पिछों आ रहे दुश्मन नूं एक बारी रोक लो, जिन्ने क सरसा लंघदे ने मैं लंघा दियां। इधर सरसा पानी चंद्रा वो लहू पीन लगा है, ते पिछों उन्हां जालमां दीयां तलवारां ने, बिच विचकार सतगुरु है। असी कई बारी शरधा बस किसी गल नूं बहुत ज्यादा वधा दिंदे हैं, पर जदों कदे दूजा कोई बंदा इतिहास का विद्यार्थी उस इतिहास नूं फोलेगा ते जे विचों हकीकत ना होई, उन्हें साडा भी इतिहास मिथिहास कह के छड्ड जाना। उस वेले असीं कई बारी कह दिंदे जी उत्थे सरसा दे किनारे कीर्तन होया, मैनूं माफ करियो। गुरु गोबिंद सिंह एडा महान जरनैल होवे, जेड़े खास बंदे हुंदे ने ना, हनेरे विच सिर्फ आवाज ते निशाने ला दिंदे ने। कीर्तन हो रहा होवे, किहनूं नहीं पता लगदा भी उत्थे सिंह बैठे ने, ते किन्ने सौखे सन निशाने लाउणे। और थल्ले तो मीह पिया होया, तुसीं सोचो भी बाहर उत्थे कोई छत थोड़ा सी, बाहर मीह पिया होया ते चारे पासे थल्ले पानी वग रहा, चिक्कड़ होया, उत्थे कित्थे बैठे होणगे, किहो जिहे हालात ने इतिहास दे। सच ये है भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह कहा भी सिंघो आशा की वार का वक्त है, ते अपने अपने अंदर सिंह गुरु की बाणी पढ़ रहे ने, ते बाहरी तौर ते जंग लड़ रहे ने घोड़ियां दे उत्ते। इहदे दरमियान पार करदे आ, सरसा पार करदे आ, इधरले कंढे ते सारा परिवार इकट्ठा सी, बस परले कंढे जाके परिवार दे 3 टुकड़े हो गए। कितना चंगा हुंदा जे सिख कौम कोल जिथे एक परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा है, उत्थे किते मिलाप परिवार मिलाप गुरुद्वारा भी किते हुंदा नहीं है प्यारे। विछोड़े तो बाद अगे दुख ही दुख ने, एक होवे ते कहा जा सकता है। सरसा तो पार लंघ गए, एक टुकड़ा गुरु कलगीधर पातशाह दे नाल है, 5 प्यारे ने, 2 साहिबजादे ने, कुछ करनी वाले गुरु के सिख होर ने। दूजे पासे मातावां ने, भाई मनी सिंह है, ये लेके दिल्ली चले गए। दिल्ली क्यों गए? दिल्ली तो प्यासी सी खून दी, क्योंकि दिल्ली विच वो सिख बैठे ने जेड़े औरंगजेब नूं शीश भी नहीं चुकन देंदे। लखी शाह बनजारा भाई मनी सिंह दा सौरा है,
ते भाई मनी सिंह अपने सौहरे परिवार विच लैके वो गए ने भी मातावां इस तो वध सौखा ढंग नहीं कोई हो सकता, वो तां दिल्ली लैके गए सन। एक तीजा पक्ष है इतिहास का बड़ा ही दुखदाई। माता जी ते साहिबजादे छोटे, उन्होंने माता के कन्नां विच आवाज़ां पैंदियां ने हथियारां दियां, लड़ाइयां दियां, घोड़ियां दे हणकण दियां, जख्मी होण दियां। जदों जख्मी होके डिगदे ने, हाल दुहाई करते ने लोग, मां ने इधरले पासे जाण दी बजाय सरसा पार करदे सार एक दूर झुग्गी विच दीवा जगदा ते उधरले पासे अपने पोतरियां नूं लेके चले गए। झुग्गी दा बूहा खटखटाया, अंदरों एक बजुर्ग जिहा बंदा जिहदा नाम कुम्मा माशकी, वो बाहर निकलिया, हाथ विच दीवा पकड़िया होया। जदों बूहा खोल के बाहर देख लै, दीवे दी लोच पछाण लैंदा है। पछाण दी असार ओदियां अखां भागी हो गई, अखां चों अथरू अपने आप आ गए। इक्को ही गल निकली, कहन लगे मां अज महिलां दे मालिक गरीब दी झुग्गी अगे। मां ने आख्या हाँ पुत, वक्त बहुत रंग दिखाउंदा है, आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। रजा दे पंधियां नूं उहदी रजा विच राजी रहना चाहिए। तां करके कोई गल नहीं, अज मैं तेरी झुग्गी विच थोड़ा जिहा आराम करना है। साहिबजादे भी अंदर चले गए ते मां भी अंदर चले गई। हुण ते मेरे वर्गा जिन्हों कुछ गल भी नहीं करनी आउंदी भी 100 नखरे करदा है, मैनूं इहो जिहा मंजा इहो जिहा बिस्तरा चाहिदा है। और जिहदा इतिहास सुना रहे होंदे है वो अज कुम्मे माचकी दी रजाई च बैठे ने तिन्ने। थोड़ा समा भी कोल बैठा रहा, ख्याल आ गया लंबे समय का घेरा सी, प्रशादा पानी नहीं छकिया। नाल दे गुआंढ दी झुग्गी च गए, उत्थे एक लक्ष्मी नाम दी माता रहिंदी है। उन्होंने बेनती की, जेड़े दाते दा नाम लेके रोज खाने है ना, ऐ सतलुज दे कंढे इधरले पासे आपां जदों भी विचरने, इस जिस मेहरां दे दाते दी इत्थे बरकतां ने, उसे ही दाते दा परिवार अज आया ते आपां एक काम कर लईए, प्रशादे दोष कर लईए। प्रशादे तैयार करके लेके आ गए। छके माता ने ते साहिबजादियां ने छके। परिवार विछड़िया होवे, हालत की होवे तुसीं समझदे हो भी किस हालात च छके होंगे। मां ने अपने कोलों मोहरां दी थैली विचों एक मोहर कड्ढी, लैती है। लक्ष्मी दी अखां च पानी आ गया। मां एक पासे जुबानों धी कहनी है, दूजे पासे जे मुसीबत विच अज 2 प्रशादे छक भी ले ते ओ मोहरां दे बदले ना तोल, गरीबी बहुत है मेरे कोल, तेरा दिता खाने है पर अज मोहरां नहीं लेनियां। मां ने चढ़दी कला दी अरदास कीती। सोच के रात दे विछड़िया होयां विचों शायद कोई सानू उड़ीकदा होएगा सरसा दे किनारे ते। वापस आ गए, इत्थे आके देखिया ते अपना ते कोई भी नहीं, शहीद हो गए। किसे दा शीश पिया, किसे दी बांह पई, किसे दी लत पई,
दूर तक नजर मारिया कोई अपना नजर नहीं आउंदा, पर अचानक आवाज पई कन्ना विच, मां। सामने वेख्या गंगू आउंदा है। गंगू ने आख्या, मत्था टेकिया, मां जिन्ना तेरे ते कहर वरतिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ शामिल नहीं हो सके, घेरा पिया होया सी, आ नहीं सी सकते। पर हुण जिन्ना चिर तेरा परिवार मुड़ नहीं मिलता उन्ना चिर तू मेरे कोल रह। हाले गंगू बेईमान नहीं है, मैं बेनती करा। हाले उन्हें काहदे ते बेईमान होना, हाले तुहानूं किसी गल दा पता ही नहीं है। अगे बाबा फतेह सिंह बैठे ने, विचकार मां गुजर कौर बैठे ने, पिछे बाबा जोरावर सिंह बैठे ने। घोड़े ते बैठ गंगू दे घर आ गए। प्रशादा पानी छकाया, मंजा बिस्तरा दिता। मां ने अपना साजो समान टकाया ते नाल दो अपने पोतरे पाले। पोतरे पाके जेड़ी मोहरां दी थैली गुरु कलगीधर पातशाह ने दित्ती सी, उस चुकी अपने सिरहाने रख लई। मोहरां दी थैली सिरहाने रख के दोने पोतरियां नूं नाल पाके आप विच विचकार खजे बैठी है। हाथ जोड़ के शुक्र कर दी अकाल पुरख दा, याद कर दी है दातिया मैनू ते मंजा बिस्तरा मिल गया, छत मिल गई, प्रशादा मिल गया, पर मेरा पुत पता नहीं केड़े खाली होवेगा। ओनू पता नहीं किते मिलिया होना या नहीं मिलिया होना। फिर ख्याल चला गया, पता नहीं मेरिया नौ रानियां किथे होणगियां, सरसा ते विछड़िया नू कोई पता नहीं। रात दे निकले इकट्ठे है, मुड़ नहीं कोई पता किथे ने। फिर ध्यान चला गया, मेरे पोतरे किथे ने, पंज प्यारे किथे ने, सिंह किथे ने। कल्ले कल्ले दी अरदास कीती, चंगा साईं ओ जेड़े भी हालत विच ने, हालात विच ने, एक मेहर करी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, उन्हें बचा के रखी, सिदक निभा दई सूरमियां ने। दादी धन्नवाद करके अपने पुत्रियां नाल पैण लगी है। जो सिरहाना चुक के ठीक करन लगी ते वेखिया थैली है नहीं। हुण गंगू दा मन बेईमान होया सी, नहीं तो रस्ते च ही पकड़ा आउंदा साहिबजादियां नूं। हुण मन बेईमान हो गया। मां ने आवाज मारी, कहन लगी, पुत गंगिया इत्थे मोहरां दी थैली पई सी, मैं बस इहो कहनी सी भी सामभ के रख लई, जिन्ने दिन असीं रहना खर्चा उहदे विचों कर लई, तू अपने ते भार ना पाई। गंगू ने सोचा सी भी शायद मजबूरी वास्ते नहीं कुछ बोलणगे। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। दुनिया में आके अपना नाम बदनाम कर गया, दुश्मन भी जो कर न सका वो काम कर गया। जदों गंगू उच्ची उच्ची बोलिया मैं मोहरां दी थैली नहीं चुकी, तो मां प्यार नाल उहदे बिस्तर विच उठी, गंगू दे कंधे ते हथ रख के कहन लगी, तू मेरे पुत वर्गा है, उम्र तेरी मेरे बच्चों वर्गी। गंगू रौला ना पा, उच्ची ना बोल पुतवे, ओ कमलिया मोहरा ओ नहीं जड़ी थैली गवाच गई, मोहरा तां ऐ ने जड़ियां मेरियां सज्जे खब्बे पईयां ने, ए ना गवाच जान, ओ गवाचियां तां लभ जाणगियां, ए ना गवाच जान। पुतवे रौला ना पा, तू मोहरा दी थैली नूं जान दे जिथे गई, पर मैं तेरे नाल एक वादा करनी है,
मेरा पुत वो है जिहड़ा दुश्मन दे भी तीर मारे उहदी नोक नूं सोना लग्या हुंदा है। मेरा पुत वो है जिहड़ा कोई कविता भी रब दे नाम दी पढ़ दे ते ढाला भर के मोहरा दे दिंदा, तेरा तां घर सारा सोने दा बना के रख देगा। पुत वे मैनू वक्त कट लेण दे, तू नेहा ना करी। गंगू ने सोचा शायद मां शांत हो गई है, नाल दे कमरे च जाके पै गया। नींद तां नहीं आउंदी, पर उहदे कन्नां च एक आवाज पै गई। बाहरों कोई ढोल ते डग्गा मार के उच्ची सारी एक होका ले रहा है, कोई जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे परिवार की मदद करेगा उन्हें सजा मिलेगी, जेड़ा दस पाएगा उन्हें इनाम मिलेगा। गंगू ने सोचा इदों वधिया समा की हो सकता है, मेरा पाप भी लुक जाना है ते मैनू इनाम भी मिल जाना है। उठिया, पिंड दे पतवंते सज्जणा नूं लिया, जाके मोरंडे तो जानी खां ते मानी खां नूं ले आया। सवेर का वक्त होया, हजे मां बाणी पढ़ के हटी है, शकिया भी कुछ नहीं, पर साहबजादियां दे हथकड़ियां ला के, मां दे हथकड़ियां ला के रथ विच बिठाल के पापी मोरंडे ले गए। मोरंडे ले जाके कोतवाली विच बंद कर दिता। घोड़ियां ते सवार होए जानी खां मानी खां ते नाल गंगू वजीर खां नूं जाके दसिया, जेड़ा काम तू 7 महीने घेरा पा के नहीं कर सकिया, जेड़ा काम तू सरसा दे किनारे नहीं कर सकिया, जेड़ा काम तू चमकौर साहब दी गढ़ी ते जंग लड़के नहीं कर सकिया, वो असीं कर आए हैं। पकड़ना ते गुरु गोबिंद सिंह दे परिवार नूं ही सी ना, ते असीं वो पकड़िया होया है। वजीर खान नूं लग्या जिवें मेरियां सारियां हारां हुण जित विच बदल जाणगियां। कहण लगे जल्दी जावो ते उन्हां नूं लैके कल सवेर दी कचहरी विच हाजिर करो। वापस आ गए। आउण जाण विच सारी दिहाड़ी लंघ गई। ओ वाली रात भी माता एक दिन ते एक रात मोरंडे वाली कोतवाली विच उठे बंद रहे। अगला दिन चढ़िया, फिर दोबारे हथकड़ियां ला के ते ओदे रथ विच बिठा के सरहंद ले गए। वजीर खां दी कचहरी लगी हुई, नुमाइंदे बैठे ने। जदों कचहरी दे विच जाके सुनेहा मिलिया भी वो आ गए ने, पापी कहन लग्या एक काम करना है, माता नूं बाहर ही रहन देना है, साहबजादियां नूं अंदर ले आयो, क्योंकि जदों बड़ा कोई नाल होवे ते छोटे डरदे नहीं हुंदे। वैसे तो पहले ही बड़े डरे हुए सहमे हुए होणगे, इन्ना कुछ उन्होंने अपनी अखां नाल वेखिया, फिर भी एक मैं रुक के बेनती करन लगा। मैं बहुत बारी देखिया मामा अपने स्वार्थ की खातर बच्चे नूं एवें कोई ना लेके डरा दिंदियां ने ते बच्चा डरिया होया सौ जांदा है। मैं हाथ जोड़ बेनती करा कि बच्चियां नूं साहबजादियां दी गाथा सुनाओ, और रात नूं बाथरूम करन लग्या भी मां नूं उठा लैंदा ना, ते उन्हें पता लगेगा 7 साल दा तां नीहां च खलो गया सी, मैं उठ के बाथरूम भी नहीं जांदा। अपने विरसे नूं जानिए, उहदे चों लभीए अपने कौम दा भविख। बेनती करन लगा सां, मां नूं बाहर बिठा दिओ, साहबजादियां नूं अंदर लियाओ। साहबजादियां नूं अंदर लेके चले गए। जदों भी मैं इस मोड़ ते आउणा है ना,
सच करके जाने मेरा ते अंदर दुहाइयां पाउण लग पैंदा। मैं बहुतात लोगों नूं वेखिया, तुसीं भी वेखिया होवेगा, किसी दे बच्चे का कोई ऑपरेशन होना होवे ना ते उहनूं पा के अंदर लेके जाते ने ऑपरेशन थिएटर च। ओ जेड़ी रेड़ी ते पा के लेके जाते ने ना, ओदी मां ते ओदा बाप उदों तक जदों तक ओदा दरवाजा जबरदस्ती बंद नहीं करते, जद तक हाथ लाई रखते ने, तरले करते ने डॉक्टरां दे, सानूं एक बारी देख लेण दे अंदर की होना है। हालांकि उन्हें डॉक्टरों को जाना है, जिंदगी बचाने वाले को जाना है, फिर भी मां बापा नूं सबर नहीं आउंदा। अंदर ऑपरेशन हो रहा होंदा है, बाहर मां किवें तड़फदी, कदे देखियो किसी ऑपरेशन थिएटर के सामने खलो के बार बार घड़ी नूं देखदी है, इउं लगदा जिवें अज घड़ी खलो गई होवे, ओदे लई 5 सदियां बन गए होण, ओदे घड़ी अगे तुरदी नजर नहीं आउंदी, तड़पदी है। निक्का जिहा दरवाजा खड़के भज के बूहे अगे चले जांदी, मैं पुछां मेरे बच्चे दा की हाल है। मां मैं तेनू पूछना चाहना, तू रात विच बैठी सी, उदों तेरियां घड़ियां ते तेरे पल किवें गुजरे जदों तेरे साहबजादे पोतरे अंदर सन, और डॉक्टरां कोल नहीं, ओह तां कसाईयां कोल सन, तेरे नन्हे नन्हे बच्चे कसाईयां कोल सन, तू बाहर किवें पल गुजारे। मैं मेरे कोल कहण जोगे शब्द नहीं, शब्द मुक जाते ने साडे कोल, मेरे कोल शब्द नहीं मैं कह सका उस मां ने किवें ओ पल गुजारे होणगे। मैनूं माफ करियो, मैं आप खुद बहन च बह जाना। वजीर खान की कचहरी विचों साहबजादे गए, उन्होंने सोचिया सी डरे होणगे, सहमे होणगे, पर ज्यों कचहरी विच कदम रखिया ते बच्चे गज के फतेह बुलाई। मैं फिर रुकन लगा। हुण सानू ये कही जांदे ने जी जे सामने वाला फतेह बुलाउण वाला ना होवे ते फतेह नहीं बुलाउणी चाहीदी, ये भी भुलेखा है। वजीर खां किहड़े फतेह बुलाउण वाला सी, साहबजादियां गड़क के फतेह बुलाई। फतेह बुलाया करिए दब के, भावें सामने वाला कोई भी होवे, असीं आपे ही फैसले करी जाने, आपे ही अपने विरसे नूं छड्डी जाने। साहबजादियां गज के फतेह बुलाई, वजीर खां कलप गया। मैं ते सोचिया सी डरे हुए, सहमे हुए, तड़फे हुए होणगे, ये ते अडोल ने। वजीर खां कड़क के कहण लग्या बंद करो, ये गुरु गोबिंद सिंह दा दरबार नहीं, वजीर सूबेदार वजीर खान दा दरबार है, कचहरी है, ते तुसी इवें नहीं बोल सकते। कुछ होर गल्लां कीतियां, आखिरकार एडा कलपिया, अपनी कुर्सी तो बड़े गुस्से विच उठिया, उठ के कहण लग्या तुहानूं नहीं पता तुसी किहदे नाल गल कर रहे हो। मैं सूबा सरहंद दा, तुसी निकड़े निकड़े बाल, तुसी आकड़ आकड़ के बोल दे, मैं जो जो करा सवाल। मैं सूबा सरहंद दा, तुसी निकड़े निकड़े बाल, मेरे मत्थे तिड़कन त्यूड़ियां, मेरा गुस्सा बड़ा चंडाल। तुसी आकड़ आकड़ के बोल दे, मैं जो जो करा सवाल। जे बाज नहीं आउणा बच्चिओ, थोड़ा कोजू मंदड़ा हाल। अगों साहबजादियां ने जिहड़ा जवाब दिता, ये चरण सिंह सफरी दे बोल ने। असी कलगीधर दे लाडले ते मां जीतां दे लाल, साडे शेरां वर्गे हौसले, साडी हाथियां वर्गी चाल। जो नहीं भी करना सूबिया, ओ कर ले साडे नाल। तू किवें भी बदल नहीं सकदा साडा सिक्खी वल्लों ख्याल।
साडियां उम्रां वल ना वेखी, ओ किते तैनूं भुलेखा हो जाएगा। साडियां उम्रां वल ना वेखी, साडा तां 8.5 साल दा बापू सी जदों अपने बाप नूं तिलक डंडू नहीं भेज दिंदा है। साडियां उम्रां वल ना देखी, साडा 5.5 साल दा ओ बच्चा सी गुरु गुरु हरकृष्ण साहब जिहड़ा तख्त ते बैठ गया सी, मैं तां फिर 7 साल दा। ये ना भरम रखे भी उम्र छोटी है तो मैं कोई कहर नहीं करना, जो तेरा जी करदा वो कहर करी। वजीर खां होर कर पिया, कहन लगे कमाल है, मेरे दादे नूं अपनी गल नहीं मनवा सकिया गुरु तेग बहादुर साहब नूं, मेरे बाप नूं अपनी गल नहीं मनवा सकिया। हैरानी की गल है, एक वजीर का सूबेदार होवे ते 7 साल के बच्चे नूं अपनी गल ना मनवा सकदा होवे। मैं इन्हां दीयां मिन्नतां क्यों करा, ये मेरियां मिन्नतां करनगे। जिहड़ी कल सवेर होएगी इन्हां दी कहर दी होएगी सवेर। अपना तो बचणगे नहीं, जे बच गए तो तड़फदे होणगे भी कदों वजीर खां दी कचहरी लगे। अज दी रात मैं इन्हां दी कहर दी रात बना देंगा। ठंडा बुरज खोलो जिहड़ा गर्मियां च भी ठंड बरता देंदा, ठंडा विच तां पौधे महीने तां पता नहीं की कुछ वापरदा होएगा। इन्हां नूं ठंडे बुरज विच कैद कर दिओ। मां गुजर कौर नूं ते साहिबजादियां नूं 140 फुट ऊंचे ठंडे बुरज विच कैद कर दिता। रात नूं जदों साहिबजादियां दे हड्ड कड़कदे ने, दंद कड़कदे ने, शरीर कंबदे ने, दादी कुट कुट सीने लाउंदी है, नहीं ठंड बाह जान देंदी। आखिर कहन लगी, पुत वे तुहानूं निगले आ। बच्चे आपस विच ही गल्लां करदे ने। पहला अल्लाह यार खां जोगी दे बोलने तुसीं बड़ी बारी सुने ने, मैं तां रिपीट नहीं करन लगा, समा थोड़ा मेरे कोल। दादी कहन लगी, मैं निकलिया। बाबा फतेह सिंह ने बड़े ध्यान नाल अपनी दादी दे चेहरे वाल देखिया, छोटा जिहा दीवा जगदा सी। कहन लगे, दादी कदे झूठ नहीं बोली, अज क्यों बोलदी है? दादी कहनी, पुत काहदा झूठ बोली है? कहन लगे, दादी ना कोई कंबल, ना रजाई, ना अग, ते इत्थे तू काहदा, इत्थे बुरज भी ठंडा है, इत्थे काहदा निग देंगी? कहन लगी, पुत सच दे राहियां नूं रजाइयां दे निग नहीं मिलदे, सच दे पांधियां नूं कदे कंबलां दे जां अग दे निग नहीं मिलदे। सानू तो साडे इतिहास दे विरसे चों निग मिलना है। अज मैं निग लेके देना चाहनी है तेनू गुरु अर्जन पातशाह दी तत्ती तवी तो। अज मैं निग लेके देना चाहनी है गुरु अर्जन पातशाह दे शीश ते पाई गर्म रेत तो। दातिया मैनू निग दे, मैं अपने पोतरियां दे हड्ड सेक लवां जेड़े ठंडे बुरज विच भी बैठे डोलण ना। दादी ने गाथा सुनाई। सवेर का वक्त होया, जालम लैके चले गए कचहरी। सूबे नूं इह सी बई शायद रात दे या तो कहानियां खत्म हो गई होणगियां, क्योंकि ठंड विच आपां वेखने ना 2 उमरां जिहड़ियां ने उन्हां नूं लोकी बड़ा बचाउंदे ने ठंड तो। पर वो अडोल ने कचहरी विच आए, सारी दिहाड़ी बड़े उपराले कीते। एक रात होर मैं ठंडे बुरज विच कटवावां फिर भेज दिते। मैं फिर बेनती करा, दादी दी ये दिहाड़ी किवें ठंडे बुरज च निकली होएगी ना, ये ते बई दादी जाने जां मेरा रब जाने, आपां नहीं दस सकते। साहिबजादे वापस गए, दादी दी गोद विच बैठे ने। सारी दिहाड़ी कचहरी का जो हाल है वह दसिया।
कि आखिर दादी नूं कहन लगे, दादी तू वो गल सुना दी गुरु अर्जन पातशाह जी दी, ते अज दी रात वास्ते निग किहदे कोलों लेंगी? दादी कहन लगी, पुत वे लोकां दी बात मुक जांदी है पर रात नहीं मुकदी। साडा तां विरसा ही एडा कीमती है, साडी रात मुक जांदी है पर साडी बात नहीं मुकदी। अज मैं तेनू निग लैके देंगी भाई सतीदास कोलों चांदनी चौक विचों। अज मैं तेनू निग लैके देंगी भाई दयाले दी उबड़दी देग विचों। दादी ने फिर गुरु तेग बहादुर साहब दी ते उन्हां सिखां दीयां शहादतां सुनाइयां। रात गुजरी, सवेर होई, अज तीजे दिन जालम फिर ले चले ने। जदों लेके चले दादी ने बड़े प्यार नाल तोरिया। बाणी पढ़ी है, 140 फुट उच्चे बुरज विचों थले आ रहे ने। 10 पौड़ियां उतरे। उस सिपाही का भी मन कुरला उठिया। पिछा नूं परत के दादी नूं देखदा है। अखां विच आए हुए अथरुआं नूं पूंझ के कहन लग्या, दोने साहिबजादियां दीयां बाहां पकड़ियां सन, अखां पूंझ के छड्ड के बाहां पिछा नूं परत के देख के कहन लगा, दादी मां मैं तेनू बड़ा देखिया ध्यान नाल, जदों तू साहिबजादियां नूं तोड़दी है ना, तू अंतां दा प्यार करके तोड़दी है, हथ चुमनी है, मत्थे चुमनी है। वापस आउंदे ने तो फिर बहुत प्यार करदी है। मैं तेरे साहिबजादे रोज ले जाना, तू प्यार करके तोड़दी है ते वापस आया नू प्यार करदी है। मैं तेरे साहिबजादे रोज ले जाना, रोज मोड़ जाना। अज मैं तेरे साहिबजादे लेके जाने ने पर मैं मोड़ के नहीं जाने। शाम नू तेरे कोलों तड़फदियां देखिया नहीं जाना। मैं रुक जाना, एक बारी तू फिर प्यार करना। तेरे कोल शाम नू जिहड़ा सुनेहा होना वो झल्लिया नहीं जाना। मां गुजरी ने अगों जवाब दिता, मेरा नाम गुजरी ते मेरी अल गुजरी। एहो जही कहानी तां मेरे उत्ते घड़ी घड़ी गुजरी, पल पल गुजरी। पहला पति दिता, हुण पोते तोरे, फिर मैनू मौत कहंदी तू भी चल गुजरी। ताइयों लोक गुजरी मैनू आखदे ने, जेड़ी आई ओ मैं सिर ते चल गुजरी। लेके आ गया सिपाही। 10-15 पौड़ियां फिर थले उतरिया होना है। कोई 35-40 पौड़ियां सारियां ही हो गई उत्तों उतरदे। दादी हजे भी दहलीजां विच खलोती है। बाबा फतेह सिंह ने आवाज मारी, कहन लगे, दादी अज एक गल भुली गई। इन्नी गल कहने की देर सी, दादी ने आवाज मारी, बे पुत हुण ना जाई, हुण ना लेके जाई। कहन लगी, फतेह सिंघा मैं ते सारियों रात याद करदी रही। कदे जीता नू कहंदी रही, देख तेरे लाल। कदे तेरे बाप नू कहंदी रही, ओ देख तेरे लाल अज किथे चले ने। मैं तो सारियां नू याद करदी रही, भुल की गई पुत वे। दस की भुली है? कहन लगे, दादी मां हर बारी अरदास करके तोड़ दी है, अज अरदास नहीं सी करनी।
अरदास ही नहीं कीती। दादी कहन लगी पुत अरदास ना अज भी करनी भुली नहीं, पर तुहाडे तो मगरों करनी है। मैं अज अपने सिर दे साईं पति नूं कहना है, दादा ते दादी कट्ठे होके पोते ते पोतियां नूं पालदे ने, आपां भी जे मैं दादी लगनी है ते तू भी तो दादा लगना है ना। कदे दादी ने संभाल ले, कदे दादे ने संभाल ले। अज मैं अरदास करनी है, जिन्ना चिर दादी सामभ सकती सी मैं सामभ ले। अज ये बच्चे शाम नूं दादी भी गोद विच ना आउण, अज दादे दी गोद विच चले जाण, इन्हां नूं तू सामभ लई, मेरे कोलों सामभे नहीं जाणे। ठीक है दादी जी असी नहीं आना, ठीक है दादी जी असी नहीं आना, तो तू भी इत्थे बहुता समा ना रही, तू आ जाई असी तेनू उड़ीकांगे। दादी ने फिर जिहड़ी गल कही ना, सोहण सिंह सीतल ने लिखी बड़ी प्यारी, चलो मेरे हीरियो, चलो मेरे हीरियो मैं मगरे आवा, ओ पुत्तां बाजों जिउंदियां कद सुनिया मामा, पुत्तां तो बगैर मामा किवें जिउंदियां ने। तुसी चलो पुत्तो तुहाडा सुनेहा उड़ीकना है, मैं तुहाडे मगरी आई। जालिम लेके चले गए। अगे सरहदी इट्टां दी कंध हुंदी सी, कंध आ नहीं, मैं हर बारी बेनती करना जिहड़ी दिखाउंदे ने कंध नहीं है, उत्ते समझ लो 4-5 फुट चौड़ी है ते 7-8 फुट लंबी कंध है, उहदे चारे पासे रदे लगे ने, उहदे विच खिलार के साहिबजादियां दे साह कुट्टे गए। साह नहीं आउंदे उत्ते तक, जदों साह कुट्टे गए बाबा जोरावर सिंह ने वेख्या फतेह सिंह दा लाल चेहरा, अखा ते ओह लगदा जिवें लहू डुलिया के डुलिया। उन्हें आवाज मारी, वीरिया बाकी ते विछड़ गए, आपां भी कल्ले कल्ले ही चले हैं, आपां ते इकट्ठे चलीए ना। तू आया मगरों तुर पहला चले हैं। जदों आवाज मारी बाबा फतेह सिंह ने होर तक कुछ ना निकलिया, उन्हें दब के जयकारा लाया ते बाबा जोरावर सिंह ने जवाब दिता। दोनों दे साह बंद हो गए सन। जयकारे तो बाद दोवें जने एक पासे लुट गए। जदों लुट के ते उन्हां नूं उठे पियां नूं पापियां ने शहीद कर दिता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, कदे सिक्खी दे विरसे नूं फुल के देखियो, इत्थे पता लगदा भी नूह किहो जी होवे, सस किहो जी होवे, सहुरा किहो जिहा होवे, बाप किहो जिहा होवे, पुत किहो जे होण, औलाद किहो जी होवे। उत्थे एक रिश्ता बड़े कमाल दा है, दादी किहो जी होवे। अज दीआं दादियां नूं मेरी बेनती है, बस इन्नी को गल सोच लियो, एक ओ दादी जिहड़ी ठंडे बुरज विच भी डोलण नहीं दिंदी, एक ओ दादी जिहड़ी रजाइयां च भी धर्म नहीं पाल रही। जे आपां दादा दादी है ना, मेरी उम्र दे कई बैठे ने, ते परण करिए मैं अपना दादा ते दादी वाला फर्ज निभाउणा है।
मैं अपने वालों साहबजादियां नूं ना चेते करवाने ने, उन्हां दी कुर्बानी बारे दसना है। मैनूं पूरी आस है साडी नींह कमजोर नहीं है, साडी छत भी कमजोर नहीं है। दो चीज़ां बंदा बड़े ध्यान नाल करदा है। साडियां नीहां च गुरु कलगीधर दे लाडले ने, साडी छत ते बैठी मां गुजर कौर है। वो ठंडे बुरज विच छत ते बैठी सी, जद शहीद हुई है ते नीहां विच साहिबजादे ने। सिखा सिखी दे महल ने कमजोर नहीं होना, बस फर्क सिर्फ इन्ना, इस महल चो निकल के किसी देहधारी दे डेरे ना जाई, उत्थे कमजोर हो जाएगा। किसी का डेरा अजिहा नहीं जिहदे डेरे दियां नीहां च हड्डियां पाइयां होण, पर इस घर दियां नीहां च हड्डियां पाइयां होईयां ने गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पुत्तां दियां। जदों गुरु शरण विच रवांगे ना, गुरु चरनां विच रवांगे, फिर भावें लखों मुसीबत होण, असीं फिर भी पार हो जाएंगे। बस गुरु दा लड़ पकड़ लईए, खंडे बाटे दी पौल दे धारनी होईए, गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ जाइए, फिर साडा जीवन ए लोक सुखीए पर लोक सोहिले। नानक हर प्रभापे मेले, होइयां भुल्लां नूं खिमा बख्शिश करनी। जिन्नी बारी भी इतिहास सुनाउणा, खुद भी बहन च बह जाना, माफी मंगने तुहाडे कोलों। सतगुरु कृपा करे गावे सुने बचन साडे हिरदे च वस जान। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, समुची संगत दा, प्रबंधकी वीरां दा, गुरु घर दे प्यार करन वाले सारियां दा धन्नवाद, हार्दिक धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु चरनां नाल जुड़ के आपां अपने जीवन नूं सुधारीए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।